ask in examination, then you need to say, whom are you calling, as in standard answer. Very good. Next, W2. Who are you calling? Whom are you calling? ठीक है. नहीं, आप तो सेम चीज बोल Who दिए. are W1 ही. who Who are you? who are Who are you? ठीक है. Who are you? What is W2? W3? Hmm. purpose? W3 is for purpose. Why are you calling? Why are you calling? Why are you calling? And W4? बताओ बताओ. Where are we calling him? Where are you? Frequency. Where are you? Huh? Where are you means which frequency you are on. Basically, these W represents whom, who, why, and where. This is the 4W. That's all. So in every answer, you need to answer like सबसे पहले उस स्टेशन का नाम लेना है जिसको हम कॉल कर रहे हैं. देन हम हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है. देन एज अ प्रैक्टिस वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है. रियल लाइफ फील्ड सिनेरियो में नो रिक्वायरमेंट. Directly then you can use W3. Done. Okay. Now give me a plan using chart number 8 today. Victor Kilo uniform. You only going to give me a plan and use chart number 8. Please let me know कौन सा चार्ट आप यूज कर रहे हो, वर्जन 2 वाला या ओल्ड चार्ट. Old charts. ओल्ड चार्ट. ठीक है. चार्ट नंबर 8. Okay. Go ahead, give me a plan. Akasa Air 6962. ठीक है. Airbus 320. Flight turbulence medium. Type of flight schedule. Type of equipment standard. Departure aerodrome. Kolkata. क्या है कोलकाता का ICAO कोड? VOCC. VECC. Victor Echo. Charlie. Victor Echo. Victor Echo Charlie. Yes. To Guwahati. क्या है गुवाहाटी का कोड? Victor Echo Golf Tango. ठीक है. Alternate aerodrome Dimapur. ठीक है. Victor Echo Delta Romeo. ठीक है. Next. Flight level 320. Passenger on board. Not required. Flight plan का पार्ट नहीं है पैसेंजर ऑन बोर्ड. नेसेसरी आइटम्स में नहीं है, हालांकि लिखे जाते हैं. इन अ फ्लाइट प्लान इट इज रिटन बट 13 पैरामीटर्स में नहीं आते हैं. Additional information. Live hunger on board. ठीक है. और क्या क्या मिस हो रहा है देखो, 2-3 पैरामीटर मिसिंग है अभी भी. टाइम, फ्लाइट रूल. Time of departure 1200.
route Romeo 472 ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल और VFR फ्लाइट रूल। IFR. Flight rule IFR. ठीक है। Review your call. How many parameters you have given? You have told Akasa Air 6962 Airbus 320 vector turbulence is medium. Scheduled flight equipment standard Kolkata to Guwahati. Alternative room is Dimapur. Flight level 320 live organ on board. Time of departure is 1200. Route is Romeo 472 and you are flying under IFR. Please do let me know about wake turbulence. क्या होता है ये और कितने कैटेगरी हैं? What is the wake turbulence? Wake turbulence had 3 category. होता क्या है? Small, पहले definition. wake turbulence is the turbulence produced by the engine of the aircraft. These are 3 category. Small, medium and large. नहीं, low, medium and high. Small is a size parameter. वो size बताएगा कि small, medium या large. यहाँ पे amount of air है तो उसके लिए low या high होगा, या low या moderate, light या moderate. ठीक है? Yes, low, medium या high. ओके, या फिर लाइट, मॉडरेट और हेवी. Yes, sir. इन तीनों Low, में. up to the 7,000 kilogram maximum takeoff weight of aircraft. हाँ. And medium up to more than 7,000 kilogram and up to 1 lakh 1,30,000 36,000 kg. ठीक है. 36,000 and more than 1,30,000 kilogram maximum takeoff weight is high wake turbulence. Then something is there like super heavy. Heavy is there with more than 1,36,000 and something is super heavy. How many aircrafts are there in super heavy? Like 787, 747. These all are heavy. These all are heavy. Heavy. Super heavy. Super heavy. Airbus 380. Yes. Airbus 380. ठीक है. This is one of the popular civilian example. And Antonov. ठीक है. Now, Antonovs, those cargo aircrafts. ठीक है. Now, question in front of you. You have told Kolkata 129. ठीक है. Okay. Now, question in front of you is, ठीक है. During taxi, you have seen birds gathered मतलब जुटना, जमा होना. Birds gathered around a dead body of animal. Take action. पेन मेडे कुछ नहीं. Yes. Pen. Kolkata ground. Akasa Air 6968 on 162. You have told or 8? Your call sign was 6962 or 6968? 662, sir.
Correction. Akasa Air Hmm. 6962 on 121 Niner. decimal niner. Hmm. Current position taxiway Charlie. Sighted flock of birds in front 0 9 meter. Request bird scaring team. Akasa Air 6962. Six niner. Six Six niner. niners. Hmm. Alpha Juliet Delta, you want to answer the same question? Yes, sir. Go ahead. Pen, 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 pen. Kolkata ground or Akasa Air 6962 on 121 decimal niner. Airbus 320 with turbulence medium. Kolkata to Guwahati. Current position taxiway Charlie. Sighted bird sighted flock of birds around dead body of animal. Request bird frightening team vacate the taxiway. Akasa Air 6962. Okay. Sierra Oscar Hotel, you want to answer the same question if you are ready? Yes, no, anything? Can you answer? Yes. Okay, go ahead. Pen, 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 pen. Kolkata ground. Akasa Air 6962 on 121 decimal niner. Airbus 320. Wake turbulence medium. Current position taxiway Charlie. Sighted flock of birds around dead body of animal on adjoining of taxiway Charlie and Delta. Request word fighting team Akasha Air 6962. Very good. Uh, Sierra Romeo Juliet, you want to make a try? Yes, sir. Please go ahead.
Pan, 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 pan. Kolkata ground. Akasa Air. 6962. Have you joined with two devices? नहीं सर, एक ही डिवाइस है. It was an echo. That's why. ठीक है 6962. On हम्म 121 decimal niner. हम्म Airbus 320. Wake turbulence medium. Current position. Taxiway delta. Sighted. Flock of bird. जारी सर आवाज. आ रही go ahead. Sighted. Flock of bird around dead body of animal. Request bird scaring team. Vacate the taxiway. Asa Air 6962. ठीक है I'll review the answer. बट कोई किसी के लिए जजमेंटल नहीं होगा. ठीक है फॉर द वेरी फर्स्ट आई विल रिव्यू द आंसर वन बाय वन. नोबडी विल जज एनीवन एंड नोबडी विल टेक डायरेक्टली ऑन हार्ट. कोई भी ऐसा सोच के डिमोटिवेट फील नहीं करेगा कि ऐसा कैसे हो गया या इतना गलत कैसे हो गया. ठीक है दिस इज बिगिनिंग. एवरीवन हैज मेड बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट. ठीक है सो डोंट फील डिमोटिवेटेड आफ्टर रिव्यू स्पेशली इन द क्लास. द फर्स्ट वन अभी इसमें क्या है इतना फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है आरटी के कॉल करने के केस में. पूछो क्यों. जब आप किसी से बात करते हो तो क्या आप सोच सोच के बात करते हो. नेवर. इफ यू मीट समबडी इफ यू इंटरेक्ट समबडी तो आप सोच सोच के आंसर लिखा जाता है. सोच सोच के बात नहीं की जाती है. in RT we are doing communication. तो आदमी इतना ज्यादा अगर सोचेगा तो बोलेगा क्या. टैक्सी वे वेकेट करने की क्या जरूरत है. हमने कहा लिखा कि वो हमको परेशान कर रहा है वो कहीं कर रहा है. ड्यूरिंग टैक्सी आपने देखा बर्ड गैदर हुआ है. ठीक है तो कहीं भी हो सकता है बर्ड गैदर. ठीक है उसके बाद आपका पोजीशन तो पता चल गया ऑन टैक्सी वे चार्ली. बट जो वो स्ट्रे एनिमल का डेड बॉडी है उसका बॉडी किधर है उसका क्या पोजीशन है ये हमको किसी के कॉल में नहीं मिला एक्सेप्ट सियरा ऑस्कर होटल. ठीक है सो आंसर ऑफ सियरा ऑस्कर होटल इज परफेक्ट रेदर देन ओनली वन थिंग लास्ट वाला रिक्वेस्ट बर्ड फ्राइटनिंग टीम. ठीक है इससे भी बेहतर कॉल जाएगा रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन. हमने क्वेश्चन में कहा लिखा है कि वो हमको परेशान कर रहा है. आपको जो बेहतर लगता है आप एक्शन लो. हाउएवर दिस इज आल्सो नॉट 100% रॉन्ग. ठीक है बट रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बिकॉज दिस इज अ पेन कॉल. प्रॉब्लम देगा नहीं देगा वो आप डिसाइड कर लो. ठीक है सो दिस कॉल विल गो लाइक कि आवर एयरक्राफ्ट वाज ऑन टैक्सीवे चार्ली. हमने देखा फ्लॉक ऑफ बर्ड अराउंड अ डेड बॉडी. किधर. ऑन एडजॉइनिंग टैक्सीवे चार्ली एंड डेल्टा यानी टैक्सीवे चार्ली और डेल्टा जहां मिलता है वहां पे देखा. लेफ्ट ऑफ टैक्सीवे डेल्टा राइट ऑफ टैक्सीवे इको. इस तरह से पोजीशन तो बताओ. आप तो चार्ली पे हो वो वाला सिचुएशन किधर है. राइट साइड ऑफ टैक्सीवे इको इस तरह से. ठीक है उसके बाद सिंपल जाएगा रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन. दैट्स ऑल. नो विकेट रिक्वायर्ड नथिंग रिक्वायर्ड. एंड द आंसर ऑफ फर्स्ट वन 9 मीटर अहेड ऑफ और क्या क्या है. हाँ साइटेड फ्लॉक ऑफ बर्ड अहेड ऑफ अस. इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है मेक इट सिंपल. आप अगर 9 मीटर बोलेगे ना हाउ यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग राइटली 9 मीटर तब आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोलना पड़ेगा.
ठीक है, तो उतना ज्यादा सोच के आंसर नहीं किया जाता है आरटी में, एकदम सिंपल। ठीक है, सो आई एम गिविंग वन फाइनल आंसर एज सिमिलर टू द आंसर ऑफ सियरा ऑस्कर होटल। ठीक है, वेरी सिंपल, आप किधर हो, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और आपको सपोर्ट क्या चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर इन सारे रिव्यू से किसी को आंसर आ गया हो, एंड इफ एनीवन वांट टू मेक अ फाइनल ट्राई, प्लीज गो अहेड, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गिव द राइट आंसर। अगर किसी को लग रहा होगा कि हाँ अब मैं समझ गया, नाउ आई कैन गिव अ गुड आंसर, यू कैन मेक अ ट्राई, डोंट बी शाय, कम अहेड, एनीवन? Victor Kilo uniform, if you got the answer, go ahead with the reply now. Yes, sir. Hmm. Pen, 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 pen. Hmm. Kolkata ground. Akasa Air 6968 on 6-9er. 69er 62 on 1-121-9er. Airbus 320 vector length medium. Current position taxiway delta. Sighted flock of bird around a dead body adjoining taxiway. Charlie and Alpha. Wait here, आराम से। Sighted a flock of bird around dead body, ठीक है, at adjoining और on adjoining या फिर left और right of adjoining taxiway, इस तरह से। किधर, at, on, प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था ना ग्रामर में, प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी एडजेक्टिव का पोजीशंस का प्री है वो, कि वो उसका पोजीशन डिटरमाइन करता है। एट एडजॉइनिंग टैक्सीवे, ऑन एडजॉइनिंग टैक्सीवे, इस तरह से। सिमिलरली जब आप लोग ये बोलते हो ना करंट पोजीशन, तो यहां बोला करो करंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे डेल्टा। ठीक है, तो ग्रामर ऐसा नहीं है कि आप 100% सही बोलो, बट सम बेसिक ग्रामर्स आपके आंसर में दिखना चाहिए। ओके, ट्राई वन मोर टाइम। Sighted flock of bird around a dead body. Next, dead body of animal. Sighted flock of bird around a dead body of animal left of the Animal, ठीक taxiway है, delta. very good. Requesting हाँ, bird frightening team. ठीक है, close the call. Akasa Air 6962. ठीक है, request bird frightening team or request appropriate action, whatever suits you, you can go ahead. चलो, ठीक है, now moving to the next question type. During taxi received brakes hot indication. ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट में जो व्हील में ब्रेक्स होते हैं, अच्छा, आपके एयरक्राफ्ट में ब्रेक जो होते हैं, कितने ब्रेक होते हैं एयरक्राफ्ट में, मीन्स नोज लैंडिंग गियर में ब्रेक होते हैं, मेन लैंडिंग गियर में ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक्स होते हैं, ऑन ग्राउंड आपके एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स कहाँ पे होते हैं, नोज लैंडिंग गियर में या मेन लैंडिंग गियर में? मेन लैंडिंग गियर। नोज में, नोज में नहीं होता है, नहीं। ठीक है, तो आपको पता चला ड्यूरिंग टैक्सी नोज में क्यों नहीं होता ब्रेक? देख हो लीजिएगा ये सकता है कट ना फट डिस्क जाएगा। ब्रेक जैसा जैसा, क्या हो जाएगा? अगर आप जैसे लैंडिंग कर रहे हो उस समय अगर आप ब्रेक व्रेक यूज कर रहे हो नोज का तो एयरक्राफ्ट फट जाएगा सर। एयरक्राफ्ट तो मेन का ब्रेक मारेगा, नोज का ब्रेक ही नहीं मारेगा। बाइक चलाते हो, नोज ब्रेक मारने से कहाँ पलटी हो जाती है? उसका स्पीड ज्यादा होता है सर एयरक्राफ्ट का। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, एक्चुअल रीजन मुझे भी नहीं पता, हालांकि किसी को भी नहीं पता अदर देन मैन्युफैक्चरर। थिंग्स कैन बी डन, बट नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग टैक्सी यू हैव रिसीव्ड, तो ब्रेक्स में क्या होता है, ब्रेक्स का टेम्परेचर सेंसर लगा होता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, कि ब्रेक्स हॉट हो रहा है क्या या हीट अप हो रहा है क्या। यू हैव रिसीव्ड ब्रेक्स हॉट
इन कॉकपिट, टेक एक्शन। अभी आप लोग आंसर करने से पहले थोड़ा सा होल्ड करो। ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन इन कॉकपिट, टेक एक्शन। अभी मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो दिखा देता हूं कि हाउ द ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन कॉकपिट। क्या होता है, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट में तो नहीं, बट ऑलमोस्ट ऑल कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट विच इज कैरिंग पैसेंजर्स फॉर कॉमर्शियल एयरलाइनर्स, उनमें आपको या फिर बिजनेस जेट में प्रीमियम एयरक्राफ्ट्स, उनमें आपको ब्रेक्स का टेम्परेचर मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, ये देखने के लिए जैसे मान लो कि आपका व्हील ग्राउंड पे रोटेट कर रहा है, तो ब्रेक्स दो पार्ट में होते हैं, स्टेटर और रोटर। ठीक है, तो स्टेटर और रोटर आपस में फ्रिक्शन के कारण हीट तो नहीं जनरेट कर रहे, नहीं तो क्या होगा, फायर पकड़ लेगा और आपका लैंडिंग गियर डैमेज हो सकता है। सो यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द रियल कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ब्रेक्स, 4 ब्रेक हैं टोटल मेन लैंडिंग गियर के, ईच व्हील में देयर इज अ ब्रेक। सो all 4 brake temperature is being measured and getting indicated in cockpit। ठीक है, इंडिकेशन का मेथड किसी भी टाइप का हो सकता है, आपको चाहे तो लेवल बना के दे देगा 3 लेवल में, ग्रीन येलो रेड ऐसा करके, या फिर नंबर वाइज 1 2 3 4 5 का स्केलिंग दे देगा, 1 2 ग्रीन रेंज, 3 येलो, 4 5 रेड। मतलब आपको बस इंडिकेट करवाएगा कि ब्रेक्स कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी फॉर नाउ, ब्रेक्स कंडीशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी अप टू ए स्केल। तो कलर कोडिंग का यूज करे, मार्किंग स्केल का यूज करे, लेवल या बार इन सब का यूज करे, किसी भी टाइप का फीलर गेज टाइप, नॉट फीलर गेज, फीलिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप का इंडिकेशन यूज करे। बट जरूर हर एक एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स के टेम्परेचर का मेजरमेंट आपको कॉकपिट में दिखाएगा। इंडिकेशन मेथड कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, गेजेस, या फिर आपके डिजिटल पैरामीटर्स। डन। तो अगर ब्रेक्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको कॉकपिट में पता चलेगा। Why it is necessary? Because that may damage your landing gear. That's why brakes temperature to be monitored. अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, so they may catch fire. ठीक है, so brakes hot indication is a pan situation or mayday. Who is going to tell? Sir, pen. Pan. Okay, go ahead. Go ahead with the answer then. I'll give. Mm-hmm. Pen. Kolkata ground. Akasa Air 6962 on 121.9. Airbus 320. Wake turbulence medium. Current position on taxiway Charlie. Receiving brakes hot indication. Holding present position. Request firefighter service and emergency service to monitor brakes condition. Akasa Air 6962. Very good. This shows practice is getting perfect. ठीक है, this is a good practice of answer. This call is good. I don't have any doubt. Still need to review. You have given a call to Kolkata ground that Akasa Air 6962 is there. Airbus 320, vector turbulence is medium. You are on taxiway Charlie. You have received brakes hot indication. Here you can mention little more. Receiving brakes hot indication in cockpit, because in question it is given in cockpit. तो question को as it is chepo. ठीक है, receive brakes hot indication in cockpit, holding present position, or you can mention here stopping slowly on current position. Why stopping slowly? क्योंकि ब्रेक गर्म है, आप अगर जोर से ब्रेक भी मार दोगे या सडन स्टॉप हो जाओगे, सो दैट में इग्नाइट,
स्टॉपिंग स्लोली ऑन करेंट पोजीशन, जहां हूं वहीं पे धीरे धीरे रुक रहा हूं, ठीक है। स्टॉपिंग स्लोली और करेंट पोजीशन और होल्डिंग करेंट पोजीशन, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू मॉनिटर द ब्रेक्स कंडीशन। फायर फाइटिंग सर्विसेज बुझाने के लिए या इंजीनियरिंग टीम से किसी को भेजो जो कि थोड़ा पता कर पाए क्या है नहीं है, ठीक है। एवरीवन गॉट द आंसर? समझ में आया सबको? यस, नो, एनीथिंग? यस सर। ठीक है। यस सर। whenever any student is answering, ठीक है, कोई भी आंसर कोई भी कर रहा हो, आप लोग उसको लिखने की आदत डालो थोड़ा, ठीक है। रफ पेजेस बर्बाद करो। मैंने जब अपने आरटी के लिए प्रिपेयर किया था तो मेरे 4-5 कॉपी फुल 100 पेज वाले, और मैंने तो कॉपी भी यूज नहीं किया। हमारे कंपनी में बहुत सारे पुराने सीआरएस के बुकलेट थे ऐसे ही पड़े हुए, मैंने सबको रफ की तरह यूज करके खत्म कर डाला। तो आपको भी यही ध्यान रखना है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अगर कोई भी आंसर कर रहा है उसको फटाफट अपने नोटबुक में लिखने का प्रैक्टिस करो। आपको ना, अगर सेकेंड पर्सन इफ ही इज आंसरिंग समथिंग रॉन्ग, तो लिखते लिखते आपको आइडिया लग जाएगा कि उससे क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी आंसर करे, अच्छा गलत, आफ्टर ऑल फाइनली मैं रिव्यू करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कोई भी कुछ भी आंसर करे उसको नोट करो, इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, ठीक है। डायरेक्ट अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे वो भी हेल्पफुल होगा, बट नोट करना इज बेटर, ठीक है। सो आई होप एवरीवन गॉट द आंसर टाइप। ये वाला आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। आ गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ग्राउंड ओनली, ठीक है। एज आई सेड यस्टरडे, मैं सारा तो नहीं, ठीक है, बिकॉज 30-40 प्रैक्टिस करवाने में आप ही का टाइम वेस्ट होगा। मैं 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ इन क्लास, बट अगर आप खुद से पढ़ोगे तो 1 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, बुक दिया हुआ है, वहां से आपका बेटर प्रैक्टिस होगा। बट क्लास में मैं हर एक क्वेश्चन टाइप का जरूर से जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा, so that everyone can relate the answers. Now, next question is, you want to carry out, ठीक है। This question will be given by चलो कोई भी आंसर करो, अगर आपको आता है तो आप कर ही लोगे। You want to carry out low pass flying, ठीक है, कल हमने पढ़ाई ट्रेनिंग पर्पस वाला कॉल किया था। You want to carry out low pass flying before departure। अब बिफोर डिपार्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है बिफोर सेटिंग कोर्स टू डेस्टिनेशन, बिफोर डिपार्चर, ऑब्टेन परमिशन, या फिर लिखा रहेगा ऑब्टेन क्लियरेंस। चलो गो अहेड। एनीवन कैन गो अहेड। मैं ट्राई करूँ सर? सर मैं करूँ? यस यस यस, पूछना नहीं है, फटाक से स्टार्ट हो जाना है, बिकॉज प्लेटफॉर्म इज कोलकाता योर्स। में से अगेन। कोलकाता टावर, हाँ, आकाशा एयर 6 9er 6 2 on 121.9er Airbus 320 wake turbulence medium, Kolkata to Guwahati, current position taxiway Charlie, would like to ऑन perform करंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे चार्ली, current position on taxiway Charlie, would like to perform low pass flying for training purpose
before setting course to destination, request permission, Akasa Air 6962. ठीक है. Victor Tango Sierra Oscar Hotel. If you want to alter the answer after the current position, you can try. ठीक है, just after the current position, not all. Do you have any other answer other than this? Sierra Yes, Oscar sir. Hotel और Alpha Juliet Delta. Yes. Yes, क्या sir. है? Go ahead. Would like to. I say again. Would Hmm. like to. Go ahead. Keep Perform. answering. मैं लिख लूंगा. Yes. Hmm. Would like to perform low pass flying altitude 300 over runway for training purpose. Request permission. I ठीक say, है. before Very setting good. course to destination. Before ठीक है. समझ गए. ठीक. चलो, लैंग्वेज बनाने में थोड़ा सा before स्ट्रगल हो रहा है. नेवर अ प्रॉब्लम. setting course to destination. Akasa Air 6962. ठीक है, कोई बात नहीं. द क्वेश्चन, द आंसर गिवन बाय सियरा रोमियो जूलियट इज गुड वन. बस आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, देखो क्या है कंडीशन कि यू वांट टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग. लो पास फ्लाइंग मींस कि आप 500, 800, 1000 फीट इन सब छोटे छोटे एल्टीट्यूड पे आप रनवे के ऊपर से फ्लाई करते हो, जैसा कल हमने डिस्कस किया था. आप रनवे के ऊपर से फ्लाई करते हो, क्यों? क्योंकि रनवे का आसपास का एयर स्पेस खाली रहता है. टर्मिनल बिल्डिंग से ऊपर करो, फ्लाई करोगे, कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है. कुछ टावर्स के कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ टावर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर, दैट में गेट डैमेज. रनवे पूरा का पूरा खाली होता है, तो आप रनवे के ऊपर से लो पास फ्लाइंग कर सकते हो. तो आप किसी अल्टीट्यूड पे फ्लाइंग करोगे, कुछ सर्टेन हाइट पे, ठीक है. तो बस उसको यहाँ पे मेंशन करना है. वुड लाइक टू परफॉर्म लो पास फ्लाइंग. यहां से देखो, एट 500 feet, simple, at 500 feet over runway 29er for training purpose. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज सेट नहीं हो रहा होगा कि सर बिफोर सेटिंग कोर्स टू द डेस्टिनेशन वाला मैच नहीं कर रहा है. होता है ना, कुछ इंग्लिश ऐसी होती है कि जब आप उसको बोलते हो तो आपको अच्छा फील नहीं होता है कि नहीं ये कुछ अच्छा सेंटेंस बन नहीं रहा है. would like to perform, मैं फाइनल बता रहा हूं, have a note. would like to perform low pass flying at 500 feet over runway 29er for training purpose. इतना लिख दिया हमने. अब आपके मन में क्या बचा रह गया कि बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन. जरूरी नहीं है कि वही बोला जाए, आप ये भी बोल सकते हो, एंड देन विल सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, एंड देन सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन, या फिर एंड देन विल सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन. पहले मैं ये अपना कार्यक्रम कर लूंगा जो कि ट्रेनिंग पर्पस से है, एंड देन सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन, रिक्वेस्ट क्लियरेंसेस और रिक्वेस्ट परमिशन, आकाशा एयर 6962. समझ में आया? बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन अच्छा लैंग्वेज नहीं बन रहा था ओवर दिस सेंटेंस, तो हमने अलग से उसको मेंशन किया, देन सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन.
क्लियर सो फार? समझ में आया? यस Affirm. वेरी गुड. विक्टर Yes, किलो sir. यूनिफॉर्म, गॉट इट? Yes. ठीक है, कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है, ठीक है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप गेम खेलोगे आरटी में जबरदस्त, फेब्यूलस आंसर यू विल गेट इट. ठीक है, ये सब जो मैं बना के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने बताया. अलग अलग टाइप के आंसर देखे, दूसरे दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व पेपर्स को हमने देखा, किसी किसी का जो यूट्यूब पे 1-2 फ्री लेक्चर्स होता है वहां देखा. एंड देन आई रियलाइज, बस आपका इंग्लिश ग्रामर सिंपल होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल. और बहुत सारे बुक मैंने पढ़े रेडियो टेलीफोनी के, किसी में भी कोई लैंग्वेज का प्रोटोकॉल नहीं है, बस सिंपल इंग्लिश ग्रामर यूज करो. कहीं तो लिखा हुआ भी है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, किधर भी तो एकदम सिंपल लिखा हुआ है, यू कैन यूज सिंपल इंग्लिश ग्रामर टू आंसर द आरटी कॉल्स, ऐसा करके एकदम सीधा लाइन लिखा हुआ है. तो आप बस इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, सेंटेंस अच्छे बनाओ और मस्त आंसर होगा. ना सोचने की जरूरत पड़ेगी, ना दूसरे का आंसर समझने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि समहाउ आपको पता है कि कहा क्या जाएगा या करना क्या है. कई बार लैंग्वेज बनाने में ही प्रॉब्लम आती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, अच्छा, द प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन लाइक कंटिन्यूअसली फ्रॉम 3 days. ठीक है, और नया टॉपिक मैं छेड़ नहीं रहा हूं, बट टुडे आई विल ओपन द न्यू टॉपिक सो दैट इट विल गो एज पर प्लान. डू लेट मी नो कि मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं. दिस आंसर एंड Yes. क्वेश्चन इज गोइंग, दिस इज द रियल आरटी. एक्चुअली शुरू में जो मैं पढ़ा रहा था वो नहीं था. ठीक है, दिस इज द रियल प्रैक्टिस ऑफ प्रिपरेशन फॉर आरटी. तो क्लास में पक्का समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको, while answering and while seeking answers? Yes, no? Other stations? Yes. नहीं आ रहा तो इसी में Affirm, आपको affirm. मजा ढूंढ नहीं आ रहा तो इसी में आपको मजा ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द रियल प्रिपरेशन. यही है और कुछ नहीं. आपसे कोई नहीं पूछेगा रनवे का डेफिनेशन, इतने किसी को फुर्सत नहीं रहता है. ठीक है, लेकिन हमने पढ़ाया, क्योंकि बाय चांस अगर पूछ लिया तो ताना भी मारेगा कि क्या एयरपोर्ट पे काम करते हो, तुमको रनवे का ही पता नहीं है. ठीक है, दैट्स व्हाई वो सारी चीजें पढ़ानी जरूरी थी. उसको देखना, शुरू के 10 दिन में जो मैंने पढ़ाया, उसके बाद में उसका कभी चर्चा भी नहीं करूंगा. बट आप, ऐसा नहीं है कि आप भी उसका चर्चा नहीं करोगे, आपको करनी है, क्योंकि आपको आंसर करना पड़ेगा अगर पूछ लिया तो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, चलो नेक्स्ट टॉपिक ही ओपन करते हैं. अब ज्यादा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस हमने सब किया एंड वी हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, वैसे भी जब हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सारे कॉल्स का प्रैक्टिस हम लोग बाद में नहीं करेंगे. लास्ट तक जाते जाते फर्स्ट डे का टॉपिक भी प्रैक्टिस में आ सकता है. ठीक है, दिस इज आवर हैबिट. और मेडे और पेन पेन तो लास्ट तक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो पूछता है क्वेश्चन में. ठीक है, सो आई एम ओपनिंग अप अ न्यू टॉपिक फॉर यू. समथिंग इज नोन एज डिपार्चर रिपोर्ट. अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे मूव कर रहा है, टैक्सीवे पे है, एप्रॉन पे है, रनवे तक पहुंच गया, टेक ऑफ क्लियरेंस ले लिया. टेक ऑफ किया नहीं अभी तक हमारा एयरक्राफ्ट, राइट? तो आज टेक ऑफ करवाते हैं. ठीक है, पहले टेक ऑफ करवाएंगे, उसके बाद कंडीशन आएगा कि टेक ऑफ करने के बाद क्या क्या हो सकता है. जैसे ही आपने टेक ऑफ किया, सामने बर्ड आ गया. जैसे ही आपने टेक ऑफ किया, लैंडिंग गियर अंदर गया ही नहीं, लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हुआ ही नहीं. आपने टेक ऑफ किया, आपका फ्लैप स्टक हो गया. आपने टेक ऑफ किया, आपके फ्लाइट कंट्रोल स्टक हो गए. ये सारे कंडीशन हमने मेड और पेन पेन में पढ़े थे, अभी उन सबको देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्चर रिपोर्ट. कि आपने पूछा क्लियर फॉर टेक ऑफ, उसने बोला ठीक है जाओ टेक ऑफ कर लो. तो जब आप टेक ऑफ करके एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाते हो, तो वापस आपको टावर को बताना भी रहता है कि हमने सक्सेसफुली डिपार्चर कर लिया है. ठीक है, अब हमको डिपार्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक ऑफ स्मूथ हुआ. अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर एडवांस कर रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं. तो डिपार्चर रिपोर्ट, हाउ कैन दिस कैन गो? दिस इज वेरी सिंपल कॉल, कुछ नहीं, बस आपने टेक ऑफ किया, यही बताना रहता है.
If anybody like to answer the departure report with above flight plan, can go ahead. किसी को करना है departure report? Alpha Juliet Delta, Sierra Oscar Hotel. Yes, sir. Either of you? Yes, sir. Try करूँ sir? Yes, sir. Try तो बिल्कुल करनी पड़ेगी. Yes. Make a try, otherwise I am there. Anyhow, I'll give a good ठीक है, sir. final answer for this call. Don't worry. कोलकाता टावर, Akasa Air 6962 on 118.1, Airbus 320 with turbulence medium, Kolkata to Guwahati. Departed from correction. Departed for runway 29er at 1215, passing altitude 4000 feet for कितने जीरो बोल दिए? flight level 400 और 4000. You have told 3 times. yes sir 4000 अच्छा, हाँ, ठीक है. 4000 feet for flight level 320. Time now बता तू. अच्छा. 1225. Route नहीं, अब आप पोजीशन रिपोर्ट देने लग गए. Romeo 472. नहीं. Hold on. Now you have started giving position report. This much is enough. ठीक है? Departure report sir. only. ये हमने टेक ऑफ कर लिया. पूरा पोजीशन रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है. Okay sir. Akasa Air 69er. Akasa Air 69. Okay everyone. Okay everyone, आपने इस कॉल से जो समझा, that is good. Now I'm giving a final call. Just have a look. Very simple, nothing to say. आपने टेक ऑफ किया, टावर को इन्फॉर्म कर दोगे कि हमने डिपार्चर कर लिया है. Moreover, you can say your current position and current time कि अभी मैं इस हाइट पे हूं. That's all. उससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है? The call will be very simple and very acute. Acute मतलब छोटा. How? Just have a look. This call will go to tower. क्योंकि आपने टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मांगा था, तो टावर को ही रिस्पॉन्स करना है आपने. ठीक है? हाउ दिस कैन गो, जस्ट हैव अ लुक. आप चाहो तो अभी नोट करो. ठीक है? कोलकाता टावर, Akasa Air 6962 on 118.1, Airbus 320, IFR Kolkata to Guwahati. Departed Kolkata from runway 29er at 1215, passing 4000 feet for flight level 320. Time now 1218. Akasa Air 6962. That's all. Let me review how this is gone. हमने कहा कि we are Airbus 320 IFR कोलकाता से गुवाहाटी जा रहे हैं. हमने डिपार्ट किया. ठीक है? डिपार्टेड कोलकाता से डिपार्चर ले लिया. कहां पे से? फ्रॉम रनवे 29er. क्वेश्चन में नहीं लिखा है कुछ, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, अपने मन से. फ्रॉम रनवे 29er एट 12:15 पे हमने टेक ऑफ किया. करेंटली आई एम पासिंग 4000 फीट. हमारा करेंट एल्टीट्यूड है 4000 फीट और हमारा टॉप ऑफ क्लाइंब आगे हम लोग पढ़ेंगे. हमारा क्रूजिंग एल्टीट्यूड है 32,000 फीट.
जाना हमको 32,000 फीट पे है, 32,000 फीट पे, एंड करेंटली वी आर एट 4,000 फीट। टाइम नाउ 1218, डिपार्चर किए हुए हमको 3 मिनट हुए। आकाशा एयर 6962। क्लियर? अब आप ये पूछ सकते हो कि सर 4,000 फीट को हमने फ्लाइट लेवल 40 क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं क्या ऐसा? इसको क्यों आपने सेपरेटली 4,000 बोला और इसको क्यों 320 बोला? अल्फा जूलियट डेल्टा, डू यू हैव एनी आंसर? अल्फा जूलियट डेल्टा। यस सर। सर क्या अप्रोच है? का जो एल्टीट्यूड होता है एटलीस्ट 7,000 फीट तक अगर एल्टीट्यूड बोलते हैं तो सही रहता है। उसके बाद फ्लाइट लेवल 809 एटलीस्ट 11 एटलीस्ट कितने 1,000 फीट तक? 7। 7, ठीक है। नहीं, व्हाट इज ट्रांजिशन एल्टीट्यूड? फोर 4,000 फीट। ओके, चलो। समथिंग इज नोन एज ट्रांजिशन एल्टीट्यूड। क्या होता है इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी एयरपोर्ट्स इन इंडिया 4,000 फीट इज योर ट्रांजिशन एल्टीट्यूड। जब आप टेक ऑफ करते हो ना किसी भी एयरफील्ड से, तो आप QNH सेट किए हुए रहते हो, ठीक है? QNH पे टेक ऑफ करते हो। जब आप 4,000 फीट पे क्लाइंब कर जाते हो ना, ये आपका टाइम होता है FMS पे फ्लाइट प्लान। इस मोमेंट पे एक्चुअली आप, हम लोग जो बोलते हैं ना सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, 4,000 फीट पे ही हम लोग कोर्स सेट करते हैं टू द डेस्टिनेशन। अब वहां से बाएं टर्न लेना है, दाएं टर्न लेना है, किधर लेना है, एक्चुअल यहीं पे डिसाइड होता है ट्रांजिशन एल्टीट्यूड पे। एंड इसी मोमेंट पे आपका एयरक्राफ्ट QNH से QFE या QNE में शिफ्ट होता है। इंटरनेशनल है तो QNE, डोमेस्टिक है तो QFE में शिफ्ट कर लेते हैं। So this altitude is known as transition altitude, that is 4,000 feet. So up to 4,000 feet आप फ्लाइट लेवल को अल्टीट्यूड, ठीक है, पूरा 2,000 फीट 3,000 फीट इस तरह से बोलोगे। फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करके नहीं बोलना है। कब तक? अप टू 4,000 फीट, ठीक है? 1,000 फीट, 2,000, 3,000, 4,000। फ्रॉम 4,000 ऑनवर्ड्स you can convert it to flight level 50, फ्लाइट लेवल 60, इस साइड से, इस टाइप से, ठीक है? बट आई मस्ट से अप टू फ्लाइट लेवल 9,000 फीट आप इसको मस्त 1,000 और अल्टीट्यूड के फॉर्म में बोला करो, ठीक है? हाइट अप टू 9,000 फीट, अल्टीट्यूड अप टू 9,000 फीट। आप इसको रॉ फॉर्मेट में बोला करो कि अल्टीट्यूड 7,000 फीट, अल्टीट्यूड 8,000 फीट। जब 2 डिजिट का स्टार्ट होने लगेगा ना, फ्लाइट लेवल 100, ठीक है, फ्लाइट लेवल 110, इस टाइप से, तब आपको फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। फ्लाइट लेवल 120 यानी 10,000 फीट के बाद से आप फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करके बोला करो। बिलो 10,000 डायरेक्ट उसको 1,000 का यूज करके 9,000, 8,000, 6,000, 5,000 सिंपल वे में बोला करो। क्लियर? हालांकि रूल है अप टू 4,000 फीट, बट बिलो 10,000 सिंगल डिजिट वाले में आप डायरेक्ट 1,000 के फॉर्मेट में बोलो, आपको भी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट 10,000 ऑनवर्ड्स आप उसको फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट करके बोलो। क्लियर सो फार? सबको समझ में आया? ठीक है। सो कुछ नहीं, कॉशियस अगर ट्रांजिशन एल्टीट्यूड को पूछता है दैट इज 4,000 फीट, बट अप टू 10,000 हम लोग उसको रॉ फॉर्मेट में बोलेंगे एज ए नंबर। हमने अल्टीट्यूड का रीडिंग टेक्निक्स पढ़ा था कि 1,000 और 100 का यूज कर सकते हैं। तो 10,000 एंड ऑनवर्ड्स आप उसको फ्लाइट लेवल में कन्वर्ट कर लो। उससे पहले आप उसको डायरेक्ट फीट में यूज करके थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में आंसर करो। डिपार्चर रिपोर्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. यस affirm ठीक है। सो दिस वाज वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। हमने जहां से डिपार्ट किया वो मेंशन किया, और
अभी किस अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं वो मेंशन किया। ठीक है, इसके बाद आता है पोजीशन रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट पोजीशन रिपोर्ट करने से पहले हम सिचुएशन को क्रिटिकल करेंगे। ठीक है, कैसे, जस्ट हैव अ लुक। अगर आप लोगों ने अल्फा जूलियट डेल्टा के कॉल को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, सो ही वाज स्टेटिंग लाइक रूट और रेडियल, ये सब मेंशन करना शुरू कर दिया था उसने। दैट वाज पोजीशन रिपोर्ट। हम लोग अपकमिंग टॉपिक्स में वही देखेंगे। बट अभी हमने डिपार्चर लिया, डिपार्चर के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो हम लोग देखेंगे। हैव अ लुक। एक इसमें सिंपल कॉल दूंगा और एक कॉम्प्लिकेटेड दूंगा। जो कॉम्प्लिकेटेड वाला दूंगा, अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो उसको आंसर आता रहेगा। ठीक है, और सिंपल वाले तो सबको आएंगे। द कॉल इज योर फ्लैप्स गॉट स्टक इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। इस केस में डिपार्चर रिपोर्ट भी होगा, साथ ही साथ पैन पैन और रिटर्न कंडीशन भी आएगा। ठीक है, सो योर फ्लैप्स गॉट स्टक इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, टेक एक्शन। दिस इज द सिंपल वन, ये सिंपल वाला है। गो अहेड एनीवन, मेक अ ट्राई। बहुत सिंपल आंसर, डिपार्चर रिपोर्ट प्लस पैन पैन। I'll try. Pen pen, pen pen, pen pen. Kolkata Tower. Akasa AF 69062 on 118 decimal 1. Air was 320. Big turbulence medium. IFR Kolkata to Guwahati. Departed Hold on a second. Hold on a second. IFR Kolkata to Guwahati. Yes, go ahead. departed Kolkata runway 290 at 1215. Flap got stuck. Unable to retract. Request instruction to land back to Kolkata. Very good. Akasa Air 69062. Sierra Romeo Juliet Alpha Victor Kilo यूनिफॉर्म। इस वाले आंसर को समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। वेरी सिंपल, राइट? वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कोलकाता, अपना डिपार्चर रिपोर्ट। फ्लैप गॉट स्टक इमीडिएटली, ठीक है, या फिर फ्लैप गॉट स्टक, हमारा फ्लैप अटक गया। यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन करो फ्लैप गॉट स्टक आफ्टर टेक ऑफ, जैसा क्वेश्चन में लिखा है आप मेंशन कर दो, नो नेवर ए प्रॉब्लम। अनेबल टू रिट्रैक्ट देम, उनको मैं रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं। जब हम टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं तो फ्लैप का पोजीशन सेट करते हैं सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम लिफ्ट। अनेबल टू रिट्रैक्ट देम, अंदर नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन टू लैंड बैक एट कोलकाता, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि फ्लाइट कंट्रोल खराब हो गया है, तो हमको इंस्ट्रक्शन दीजिए। अभी तो हम इन एयर आ चुके हैं, तो रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन की कैसे कोलकाता वापस आके लैंड करूं। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड बैक एट कोलकाता, Akasa Air 6962. Clear so far? Victor Kilo uniform? Yes, sir. Then next question is waiting for you. You have seen flock of bird. Okay? You have seen flock of bird. You have seen flock of bird ahead of you after takeoff. EA.
टेक एक्शन। चलो ट्राई विकेट के लिए इन्फॉर्म। Pen, 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 pen. Kolkata Tower. Akasa Air. Six nine six two on 118.1. IFR Airbus 320 with turbulence medium. Kolkata to Guwahati. Sighted clock of at flight level 3,000 feet. Turning right 15 degree. Will reconnect the route to cruising flight Akasa Air 6962. आपने क्वेश्चन का रिवीजन तो किया, लेकिन आपने लिख लिख के रिवीजन नहीं किया, आपने सिर्फ उसको पढ़ा। एम आई रॉन्ग और राइट? लेट मी नो। नहीं सर, लिखा है। आपने सिर्फ नहीं, अभी नहीं, वाइल गोइंग थ्रू आउट द नोट्स, जब ने आपने नोट्स से पढ़ाई करी तब आपने लिख लिख के पढ़ा या सिर्फ रीडिंग किया? डू लेट मी नो। सर एक आध दो बार लिखा है, उसके बाद वो समझने की कोशिश कोई की बात, बट हाँ, ये आंसर वैसा ही आया कि समझने का कोशिश किया, आपको सिनेरियो पता है बट स्टेटमेंट नहीं बन पाया। वेरी गुड, बाय द वे, गुड ट्राई। एक्शन आपने सही प्लान किया, ठीक है। सेंटेंस बनने में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज प्रैक्टिस नहीं किया, नेवर अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट इट वाज अ गुड अप्रोच, ठीक है। ट्रायल में इतना चलता है, नाइस वन। ओके, एनी अदर स्टेशन वांट टू मेक द कॉल? इट वाज सिंपल, आंसर वेर राइट। प्लान क्या है? इट वाज अ गुड प्लान, ठीक है। स्टेटमेंट का थोड़ा सा रह गया, नेवर इशू। चलो, एनी अदर स्टेशन? मैं ट्राई करूं सर, अल्फा जूलियट डेल्टा। हाँ, गो हेड। And on the previous call, pen, departure report was pen, missing. Go ahead. कोलकाता टावर, Akasa Air 6962 on 118.1 Airbus 320 IFR flight Kolkata to Guwahati, departed Kolkata at 1215 from runway 29er, sighted
pluck a bird, bird ahead us, Ahead of current us. position, current Ahead of position, us. altitude, ahead of us, current position, altitude, 4000 route, Why? Romeo क्यों पोजीशन 472, पे जा रहे हो? पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल रखो कॉल, डायरेक्ट एक्शन प्लान करो ना। बर्ड आगे आ गया तो इतना रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और स्पेशली 4000 फीट पे कौन से बर्ड मिलेंगे आपको? कुछ नहीं मिलेंगे। 500 से 1000 में मिला तो मिला, नहीं तो बर्ड की इतनी क्षमता नहीं है कि 4-4000 फीट जाएगा, अदर देन ईगल और वल्चर्स, ठीक है? थोड़ा सा लो ही रखो, yes 500, sir, 700, 1000। तो सर रूट से अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो रूट उसमें मेंशन करना जरूरी होगा ना फिर, रूट के नहीं, साथ। डायरेक्ट बोलो टर्निंग 15 डिग्री टू अवॉइड बर्ड्स, काम खत्म। विल रीजॉइन रोमियो 427, चलेगा? ठीक है। ओके ओके सर। सेकेंड साइटेड, चलो यहीं से मैं कॉल देता हूँ, ठीक है? ऐसे टेक इट वेरी सिंपल, टेक इट वेरी, लेट मी गिव द आंसर। टेक इट वेरी सिंपल, ठीक है? एकदम सिंपल रखना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। दीज आर द एकदम बेसिक कॉल्स, टेक ऑफ के कंडीशन का कॉल है। इतना ज्यादा टाइम अगर आप एनालाइज करके आंसर करोगे तब तक में तो बर्ड हिट हो जाएगा, ठीक है? तो कंडीशन क्या आया? आपने टेक ऑफ किया, सामने बर्ड हुआ, दाएं बाएं टर्न मारो, निकल जाओ, वेरी सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? साइटेड फ्लॉक ऑफ बर्ड अहेड ऑफ अस, सामने दिखा हमको बर्ड, ठीक है? तो क्या किया हमने? टर्निंग राइट फॉर 15 डिग्री to avoid birds, very simple, to avoid birds, birds को अवॉइड करने के लिए हम 15 डिग्री दायां मुड़ रहे हैं, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन मेंशन intercept. altitude 700 feet and will intercept, मतलब हम पकड़ लेंगे किसको? रोमियो 472, वही है ना रूट, रोमियो 472, and then set course to destination, very simple, ठीक है? अभी नाउ, अभी जो मैंने यहाँ पे आंसर दिया और जो आपको नोट्स में मिले होंगे, इसमें भी डिसिमिलरिटीज रहेंगे। आप बोल सकते हो सर वहां पे तो कुछ और लिखा हुआ है, वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ आंसर इज एक्सेप्टेबल। जरूरी नहीं है कि जो मैंने एक बार नोट्स में लिख दिया वही आंसर मैं यहाँ बोलूं और वही आंसर एग्जामिनर सुनना चाहेगा। नो, एज पर योर थॉट्स। आप चाहो तो ये सब भी मत बोलो, सीधा बोलो साइटेड फ्लॉक ऑफ बर्ड अहेड ऑफ अस, टर्निंग राइट 15 डिग्री टू अवॉइड बर्ड्स, ठीक है? अल्टीट्यूड 700 फीट, आकाश एयर 69 और 62, काम खत्म, वेरी सिंपल। हमको सामने बर्ड दिखा, हमने दाएं टर्न ले लिया, ठीक है? बट बर्ड इस अल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया कि कोई दूसरा टेक ऑफ करेगा उसके रास्ते में भी आएगा, तो बार बार अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है देन इट इज ए पैन पैन, अंडरस्टूड? यस सर। Apart. तो टेक इट वेरी सिंपल, बिल्कुल भी आंसर करते टाइम ना, सबसे पहले, एंड एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सोचो नहीं, ये बात करना हुआ, ठीक है? वी आर डूइंग कम्युनिकेशन विद एटीसी, बात करने में सोचते नहीं है, वो ज्ञानी वाला लाइन नहीं सुनना है सबको। कुछ लोग बोलते हैं ना सोच समझ के बोला करो, दिस इज गॉसिप्स, दीज आर द कम्युनिकेशन। सोच समझ के आंसर होता है, सोच समझ के गॉसिप्स नहीं होते हैं, ठीक है? in examination we are doing communication, this is language, ठीक है? so take it simple। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम सोचना ही नहीं है, बोल देना है कि सामने वर्ड है मैं दायां ले रहा हूं, नहीं, with certain protocol will give answer, but ज्यादा complicated बनाने की जरूरत नहीं है। so I hope this much was good।
Was it going good, everyone? समझ में आ रहा है सबको? विक्टर किलो यूनिफॉर्म, सियरा रोमियो जूलियट. यस सर. पक्का, are you enjoying or this is getting bored? Do let me know honestly. सही है सर, अच्छा लग रहा है. Victor Kilo uniform, going with satisfaction? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है. Then we'll take a break of 5 minutes, not more than 5. We'll meet at 2220 with new concept position reporting. ठीक है? And pay utmost attention on position report. बहुत important topic है और बहुत छोटा topic है. Trust me. सबसे छोटा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. और आज के बाद से जैसे ही हमने पोजीशन रिपोर्ट पढ़ा, आज के बाद से आपको एक भी ऐसा कॉल नहीं आएगा जिसमें पोजीशन रिपोर्ट का यूज ना हुआ हो. यानी पोजीशन रिपोर्ट का यूज हर एक कॉल में होगा. उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी है, कुछ कुछ ऐसे भी कॉल आएंगे कि जिस कॉल में पोजीशन रिपोर्ट इनहेरेंट रहता है, छिपा हुआ रहता है. अगर आप पोजीशन रिपोर्ट नहीं करोगे, अगर उस कॉल में आपने पोजीशन रिपोर्ट किया, तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि वो इनहेरेंट है, उस कॉल में छिपा हुआ पोर्शन होता है पोजीशन रिपोर्ट. तो पोजीशन रिपोर्ट करने का एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नंबर काट जरूर लेगा. इतना इंपॉर्टेंट है पोजीशन रिपोर्ट. रिपोर्ट करने का एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, लेकिन नहीं करने पे पेनल्टी है. ठीक है? तो वेट फॉर दोज कंडीशंस इन कॉल. बट मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन रिपोर्टिंग. तो ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो आप पूछो. ठीक है? आज हम लोग पोजीशन रिपोर्ट के 2-4 कॉल्स देखेंगे. एंड दोज पोजीशन रिपोर्टिंग विल बी एसोसिएटेड विथ चार्ट्स. तो आप लोगों के पास हार्ड कॉपी चार्ट है तो अपने साथ लेके बैठ जाओ. विल मीट एट 2220. ठीक है? डन. टेक अ ब्रेक टिल दैट टाइम.
Okay, everyone, have we come back? Everyone is available? Yes, sir. Chalo. Then we'll move ahead for next topic. Please do let me know if my screen is being shared. Is it visible now? Yes, sir. ठीक. चलो then. Now, position report is very important topic in respect of all other topics which will commence from now. Now, when you are on ground, जब आप ground पे हो, तब आप अपना पोजीशन रिपोर्ट कर सकते हो by taking references of एयरपोर्ट्स के designated parts like taxiway. हम लोग बोलते हैं ना current position on taxiway Charlie. तो क्या है, जिस टैक्सीवे पे हम मूव कर रहे हैं उस पे लिखा होता है सी, या उसके आसपास बोर्ड लगे होते हैं, दिस इज चार्ली, दिस इज डेल्टा, लाइक दिस. तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम है टैक्सीवे चार्ली. तो जब आप ग्राउंड पे होते हो उस टाइम पे आप अपना पोजीशन कैन बी गिवन बाय यूजिंग टैक्सीवे एप्रोन, हम लोग बोलते हैं ना स्टैंड टू एप्रोन 6, या फिर टैक्सीवे लिंक्स जो हमने पढ़ा था कि मेन टैक्सीवे और रनवे के बीच में जो रनवे एंट्री पॉइंट होते हैं वहां पे टैक्सीवे लिंक्स होते हैं. ठीक है, रनवे लाइंड अप फॉर रनवे 29er, लाइंड अप ऑन रनवे 29er, तो रनवे नंबर, एयरपोर्ट्स जोन, डंबेल एरिया, थ्रेशहोल्ड, स्टॉप वे, क्लियर वे, किसी भी टाइप के जोन, या फिर पेवमेंट के डेजिग्नेशंस. पेवमेंट मतलब होता है पक्का. अगर आपका पोजीशन अननोन है या आपको कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ पे पार्क हो, तो आप अगर अपने एयरक्राफ्ट के आसपास देखोगे तो पेवमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, C1, B1, D1. तो पेवमेंट के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको भी आप पोजीशन की तरह यूज कर सकते हो कि करेंटली पार्क्ड एट ब्रावो 1, तो समझ जाएगा. तो पेवमेंट के डेजिग्नेशन, रनवे होल्डिंग पॉइंट्स, तो ये सब हो गए आपके मार्क्ड पोजीशन जिसमें कुछ ना कुछ मार्किंग किए हुए रहते हैं, और आप उस मार्किंग को पढ़ के अपना पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि अभी मैं इधर हूँ, बे नंबर 1 पे, स्टैंड नंबर 6 पे, एप्रोन 3 पे, टैक्सीवे चार्ली पे, लाइक दिस. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको मार्किंग नहीं दिख पा रही है तो नियर बाय एस्टेब्लिशमेंट्स, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, सपोज कई बार आप किसी से मिलते हो रेलवे स्टेशन पे तो बोलते हो ना, पिलर नंबर 100 के पास खड़ा हूं, या फिर 3rd नंबर के फुट ओवर ब्रिज के पास हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हूं, 6 पे हूं, लाइक दिस. तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े नहीं हो सकता मे बी यू आर नियर बाय, बट आप देख पा रहे हो कि आपके सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, आपके सामने पिलर नंबर 100 है, लाइक दिस. तो आप नियर बाय बिल्डिंग का भी डेजिग्नेशन दे सकते हो कि पार्क्ड नियर ब्लू कलर बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग, पिलर नंबर 100, बिल्डिंग नंबर अल्फा 3, लीमा 2, इस टाइप से. तो नियर बाय बिल्डिंग्स, टैक्सीवे के नियर बाय कि लेफ्ट ऑफ टैक्सीवे डेल्टा. ठीक है, पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ मेंटेनेंस हैंगर, लाइक दिस. या फिर आसपास कोई दूसरा एयरक्राफ्ट खड़ा है, लेफ्ट ऑफ विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा, ये सब. तो अगर आपको करंट पोजीशन ग्राउंड पे पता नहीं चल पा रहा है तो आसपास के एस्टेब्लिशमेंट को देख के भी अपना पोजीशन रिपोर्ट कर सकते हो. और अगर आपका पोजीशन अननोन है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, उस केस में आप अपने लास्ट नोन पोजीशन को ट्रांसमिट करोगे कि अभी तो पता नहीं चल पा रहा है मैं किधर आ गया हूं, और ना ही रेफरेंस के लिए कुछ मिल रहा है, बट आई नो कि लास्टली आई वाज एट टैक्सीवे डेल्टा. तो एटीसी वाला नजर घुमाएगा कि अगर ये डेल्टा के पास लास्ट में था तो किधर जा सकता है, वो वहां से देखेगा. ठीक है. सो these are the references what you can use while transmitting your position when you are on ground. But when you are on air, you on air नहीं, in air होगा, grammatical error. When you are in air,
उस टाइम पे आप क्या क्या रेफरेंस यूज करोगे टू मार्क योर पोजीशन? सबसे पहला और सिंपल, योर करेंट लेवल। ठीक है, आपका करेंट फ्लाइट लेवल या करेंट अल्टीट्यूड क्या है? 7,000 फीट, 8,000 फीट, फ्लाइट लेवल 320, जो भी है अपने हिसाब से। Then call sign of the route. I told you while reporting the position, you need to take a reference with the chart. So just have a look. I'm opening the chart number 8. Route का call sign Romeo 472, ठीक है, या फिर whiskey 69, जो रूट के कॉल साइंस हैं। ठीक है, अगर आप कोलकाता से गुवाहाटी जा रहे थे तो आपने कौन सा रूट कॉल फॉलो किया था? रोमियो 472। सो रोमियो 472 इज द कॉल साइन ऑफ योर रूट, रूट के कॉल साइन। ठीक है, देन रेडियल और हेडिंग, एज आई टोल्ड, ये वाला 003 275, तो जिस रूट पे रहोगे वहां पे आपका रेडियल। ठीक है, रेडियल 095, रेडियल 313। और अगर किसी पोजीशन पे रेडियल का आइडिया नहीं लग रहा है तो वेरी सिंपल, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो, एक्स वाई एक्सिस, और एक हाइपोथेटिकली आप एज्यूम करके देखो कि ये वाला एंगल कितना हो सकता है, 45 डिग्री, तो रेडियल 45 डिग्री। ठीक है, अगर कहीं दिया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है फटक से ड्रॉ करके अपने मन में बना लेंगे। देन करेंट टाइम, व्हाट इज योर प्रेजेंट टाइम? जो आपको फ्लाइट प्लान में टाइम ऑफ डिपार्चर दिया रहता है, सपोज डिपार्चर वाज 1200, बट आप आ चुके हो ओवर काकीड फॉर ए वाइल, तो ये आपका हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन रहेगा, आपके अपने मन से आपको सोचना रहेगा कि भुवनेश्वर से काकीड आने में हमको आधा घंटा लगा होगा। अगर 12 बजे डिपार्चर था तो करेंट टाइम इज 1230, अपने मन से करेंट टाइम। और टाइम का कैलकुलेशन मैनुअल है, ये हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम और टू द व्यूअर, किसी व्यूअर से डिस्टेंस आइदर टू और फ्रॉम, कि आप भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर बाहर आ गए या भुवनेश्वर की तरफ 30 किलोमीटर अंदर हो, इस टाइप से। 30 नॉटिकल माइल आउटबाउंड, आउटबाउंड मतलब बाहर, भुवनेश्वर से आगे निकल चुके हैं। अगर आप भुवनेश्वर से कोलकाता की तरफ जा रहे हो एंड यू आर एट दिस ब्लू लोकेशन, आई एम मार्किंग एट ब्लू, देन यू कैन से, अगर ये डिस्टेंस है टोटल 70, तो इतना कम से कम 40 होगा, तो इस ब्लू पॉइंट पे आप बोल सकते हो 40 नॉटिकल माइल आउटबाउंड। अच्छे से सब लोग सुनो, कोई भी इसको आउटबोर्ड नहीं बोलेगा, बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आउटबोर्ड बोलते हैं। दिस इज आउटबाउंड, BOUND। ठीक है, स्क्रीन अटक गया क्या? अदर स्टेशंस? सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रीशेयर कर देता हूँ, नेटवर्क ग्लिच रहता Clear है था। कई बारी, नॉट अ प्रॉब्लम। एक बार रीशेयर कर देता हूँ सो दैट इट शुड नॉट मेक कंफ्यूजन। चलो इसी पे मेंशन कर देता हूँ। क्या है कि इफ यू आर फ्लाइंग, मैं सारे पोजीशन रिपोर्ट के पैरामीटर यहाँ पे 1 बाय 1 लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले योर लेवल, दूसरा रूट, तीसरा रेडियल, ठीक है, चौथा टाइम, और पांचवा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। अभी टाइम हमने बता दिया, रेडियल हमने बता दिया, लेवल और रूट हमने बता दिया। ठीक है, भुवनेश्वर से रेफरेंस लेंगे। लेवल आप हाइपोथेटिकल अपने मन से कुछ भी, या फिर एज पर योर सीलिंग अल्टीट्यूड, फ्लाइट लेवल 250, रूट हो जाएगा विस्की 41, देखो, रेडियल हो जाएगा 071 इधर से, फिर आता है टाइम, 12 बजे डिपार्चर है तो करंट टाइम में भी 1230। नाउ डिस्टेंस,
या किसी एमआरपी से रेफरेंस। इफ यू आर फ्लाइंग एट काकीड तो यू कैन से ओवरहेड काकीड, ठीक है। अगर आप यहां पे हो तो आप बोल सकते हो ओवरहेड या फिर ओवर काकीड, दोनों में से कुछ भी। सपोज आप एक रेड कलर के डॉट पे हो, मैं रेड कलर डॉट बना रहा हूं इन बिटवीन भुवनेश्वर एंड काकीड, यहां पे रेड कलर डॉट। इस केस में आप बोल सकते हो टू और फ्रॉम। इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, अगर हम किसी के तरफ जा रहे हैं तो उसको लिखते हैं इन बाउंड, ठीक है, IB, इन बाउंड, इन बोर्ड नहीं, इन बाउंड। Similarly, if we are going away from anyone, then we can use outbound, OB, outbound. Clear so far? Now, अब बोलोगे इसका यूज क्या करना है। रेड डॉट पे अगर हम पार्कड हैं, ठीक है, ये वाला रेड डॉट यहां पे फ्लाई कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हम किसी VOR से या किसी MRP से रेफरेंस मेजर करेंगे। भुवनेश्वर से काकेट कितना है टोटल, 71। तो ये वाला रेड डॉट जो है अगर हम हाइपोथेटिकली मेजर करें तो दिट शुड बी एटलीस्ट 50 और 40, इतना तो रहेगा ही ना। Yes. इसकी कैलकुलेशन में किसी भी एक्यूरेसी की मेजरमेंट की जरूरत नहीं है कि 45 है 55 है, नो, 40-50 में आप कुछ भी बोलो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल चार्ट है। तो ये वाला रेड डॉट आपको मन है 50 लेने का, 50 ले लो। तो इस रेड डॉट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं 50 नॉटिकल माइल आउट बाउंड भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर से जा रहे हैं तो 50 नॉटिकल माइल आउट बाउंड भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से 50 नॉटिकल माइल दूर। या फिर इसी रेड डॉट को हम दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं 20 नॉटिकल माइल इन बाउंड काकीड, काकीड की तरफ 20 नॉटिकल माइल अंदर। समझ में आया सबको? टेक वन मोर एग्जांपल, डोंट बी वरीड। इफ वी आर एट नीराद, ठीक है, पटना से किशनगंज के बीच में देर इज, मैं उसको मार्क करता हूं, दिस इज द MRP नीराद। अगर आप इस MRP के ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो इस पोजीशन को आप लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एक तो बोल सकते हो ओवरहेड नीराद, नीराद के ऊपर हूं, ओवरहेड या ओवर नीराद। दूसरा, ध्यान से देखो, पटना से नीराद के बीच कितना है, 73 नॉटिकल माइल, तो आप इसको बोल सकते हो 73 नॉटिकल माइल आउटबाउंड पटना, पटना से 73 नॉटिकल माइल आउटबाउंड। या फिर 84 नॉटिकल माइल इनबाउंड किशनगंज, देख रहे हो, 73 नॉटिकल माइल आउटबाउंड पटना या फिर 84 नॉटिकल माइल इनबाउंड किशनगंज। क्लियर है सबको? Affirm. पक्का? एवरी सियरा रोमियो जूलियट Roger. क्लियर? Yeah. So these 5 parameters, ठीक है, हालांकि there are more parameters in position report as you can see, but 5 parameters are essential. क्या क्या? Just remember on your fingertips, ठीक है, और इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। 5 पैरामीटर, लेवल, रूट, रेडियल, टाइम एंड डिस्टेंस। आपको नहीं होता है तो आप बच्चे की तरह काउंट करो, जैसे बचपन में लोग काउंटिंग सीखते हैं तो फिंगर टिप्स पे काउंटिंग सीखते हैं ना। इफ यू आस्क देम 2 + 2 तो क्या करेंगे, दो उंगली को ऐसा साथ में लाके उसके बाद 2 + 2 काउंट करते हैं, राइट? So you can also remember on your fingertips like kids, never a problem, ठीक है। If you ask them 3 + 2 तो वो ऐसा काउंट करेंगे 1 2 3, then you will ask 2, then you will add 3 2, total 1 2 3 4 5. You can also do the remember of position reports out of your fingertips, ठीक है, not to be shy.
while answering मनी मन ऐसा फिंगर पे गिन लो 5, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये आदत खत्म हो जाएगी, बट इनिशियली यू कैन रिमेंबर ऑन योर फिंगर टिप्स। क्या क्या? रूट, ठीक है, ध्यान से, रूट, रेडियल, लेवल, और क्या था चौथा? टाइम एंड डिस्टेंस। वेरी सिंपल, रूट, रेडियल, लेवल, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। रूट, रेडियल, लेवल, डिस्टेंस एंड टाइम आउट ऑफ 5। और हमेशा ध्यान रखना, जब कभी पोजीशन रिपोर्ट करो फिंगर पे ऐसे काउंट करना। अगर कुछ बच रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 आपने नहीं बोले। एंड दीज 5 पैरामीटर्स आर टॉप मोस्ट एसेंशियल: रूट, रेडियल, लेवल, distance and time. That's all. So you can remember on your fingertips like junior kids. That is pretty much required. Never be shy. आपको बोलना है, आपको याद करना है. You can be a kid while remembering these things. Never an issue. But आपको याद होनी चाहिए. So while reporting the position, these 5 parameters are essential. I'm repeating one more time. Root, radial, ठीक है, रूट, रेडियल, लेवल, डिस्टेंस एंड टाइम। रूट, रेडियल, लेवल, डिस्टेंस एंड टाइम। अब बोलोगे कि सर बाकी के हैं एयर स्पीड विच इज ऑप्शनल, और इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसको मेंशन करने में ही कंफ्यूजन रहता है। 5 लोगों से हो नहीं पाता है, 7-8 कहां से हो पाएगा। बट अगर आपसे हो पाएगा, पॉसिबल है, एयर स्पीड मेंशन करो, ठीक है। देन लास्ट नोन पोजीशन इफ करंट पोजीशन इज अननोन, दिस इज द केस ऑफ इमरजेंसी, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोजीशन रिपोर्ट। अगर इन 5 पैरामीटर को आपको पता नहीं चल पा रहा है तब हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। बट पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर। अब जो पैरा नंबर 6 है, ध्यान से समझो, जो पैरा नंबर 6 है ये क्या है? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब होता है, take a look on chart. Suppose if we are operating from Kolkata to Guwahati as per our current flight plan, जो हमने आज यूज किया, राइट? तो हम जो कोलकाता से गुवाहाटी फ्लाई कर रहे हैं, इसमें देखो, सपोज वी केम ओवर राजशाही, ठीक है। कोलकाता से ऊपर चलोगे तो जो एक व्यूअर स्टेशन है राजशाही, हम लोग राजशाही पहुंच चुके हैं। क्लियर? जाना कहां पे है हम लोगों को? गुवाहाटी। तो हमारा अगला एस्टीमेट क्या क्या होगा? अटोगा एंड गुवाहाटी, दीज आर आवर एस्टीमेट्स। सपोज वी आर ओवर कोलकाता ओनली, तो आवर फर्दर एस्टीमेट्स विल बी राजशाही, अटोगा एंड गुवाहाटी। जितने सारे वे पॉइंट हैं सब हमारे एस्टीमेट्स हैं, ठीक है। एंड एस्टीमेट्स are not a part of position report. Estimates are the part of position reporting. अब आप बोलोगे सर ये कौन सा मजाक है, रिपोर्ट और रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है? रिपोर्ट आर द पैरामीटर्स, रिपोर्टिंग इज अ मेथड, ठीक है। सपोज आपके कोई बॉस हैं, ठीक है, आपके ऑफिस में कोई एक पर्सन है, तो जब आप कभी इंट्रोड्यूस करते हो तो बोलते हो ना, ही इज रोशन सर और ही इज मिस्टर रोशन। क्या उसका नाम मिस्टर रोशन है या उसका नाम रोशन सर है? नो, हिज नेम इज रोशन ओनली। बट दिस इज द मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग देम विथ सम सैल्यूटेशन, मिस्टर रोशन, ठीक है, रोशन सर, लाइक दैट। सो पोजीशन रिपोर्ट 5 ही पैरामीटर है, लेकिन जब हम पोजीशन रिपोर्ट करते हैं ना तो साथ ही साथ हम अपने फर्दर एस्टीमेट्स को भी रिपोर्ट करते हैं, ताकि एटीसी को ये पता चल पाए कि अभी हम कहां पे हैं और अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, ठीक है, अगला हम किस वे पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। सो दिस इज एस्टीमेट्स, नॉट एग्जैक्टली required parameters of position report, but being included in position reporting. तो अभी मैं एक क्लियर पोजीशन रिपोर्ट का कॉल देता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाउ द पोजीशन रिपोर्ट इज बीइंग गिवन, ठीक है। सो हैव अ लुक। सिमिलरली कोलकाता से गुवाहाटी का फ्लाइट प्लान है
और जो हमने आज फ्लाइट प्लान रखा था प्रैक्टिस के लिए, उसी फ्लाइट प्लान का यूज करते हुए हम लोग पोजीशन रिपोर्ट करेंगे। एंड किस पोजीशन को रिपोर्ट करेंगे? मैं एक ग्रीन कलर का डॉट बना रहा हूं कोलकाता के आगे। प्लीज कंफर्म इफ दिस ग्रीन डॉट इज विजिबल टू ऑल। देखो ये ग्रीन कलर का डॉट, सपोज हमारा एयरक्राफ्ट यहां पे है तो हम पोजीशन रिपोर्ट दे रहे हैं। दिख रहा है सबको ग्रीन कलर का डॉट और लाइन? इस पोजीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। प्लीज कंफर्म इफ विजिबल टू ऑल, यस नो? यस। ठीक है, तो हमारा एयरक्राफ्ट इस ग्रीन कलर के मार्क पे है। आई एम रिपोर्टिंग द पोजीशन, हैव अ लुक हाउ दिस विल गो। कॉल जाएगा कोलकाता कंट्रोल को। क्यों? क्योंकि ना ही ये टावर के रेंज में है, ना ही ये अप्रोच के रेंज में है, बियॉन्ड द अप्रोच एंड टावर है। तो कॉल किसको जाएगा? कंट्रोल को। ठीक है, कोलकाता कंट्रोल, Akasa Air 69er62 on 132.45 Airbus 320 IFR Kolkata to Guwahati. Current position, नोट करो सब लोग, करंट पोजीशन फ्लाइट लेवल 320। एक बार हम लोग अपने अप्रोच और टावर के रेंज से बाहर आ गए तो जो अल्टीट्यूड हमारे प्लान में लिखा रहेगा हम अपना अल्टीट्यूड वही मानेंगे। अगर प्लान का अल्टीट्यूड नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा कि यू आर पासिंग 6000 फीट, यू आर पासिंग 7000 फीट। नहीं लिखा है तो हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड ही हमारा करेंट अल्टीट्यूड है। करेंट पोजीशन फ्लाइट लेवल 320 रोमियो 472। रोमियो 472 क्या है? हमारा रूट। रेडियल, रेडियल का शॉर्ट फॉर्म आरडीएल, रेडियल 003 70 नॉटिकल माइल। या फिर अगर आप आईएफआर में ऑपरेट कर रहे हो तो इसको बोल सकते हो 70 डीएमई आउटबाउंड कोलकाता। या फिर इसी को आप कैसे बोल सकते हो? 29er डीएमई इनबाउंड राजशाही। डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको पसंद पड़े। टाइम नाउ, डिपार्चर टाइम कितना था? 12 बजे। तो सपोज हमने 70 नॉटिकल आने में 15 मिनट लिया। टाइम नाउ 1215। ये हो गया हमारा पोजीशन रिपोर्ट। देखो कितने पैरामीटर हमने रिपोर्ट किए। हैव अ लुक, लेवल, रूट, रेडियल, डिस्टेंस एंड टाइम। हो गए 5 पैरामीटर। अब आते हैं एस्टीमेट्स, जो कि हमारे रिपोर्टिंग का पार्ट है, रिपोर्ट का नहीं। एस्टीमेटिंग, ठीक है, एस्टीमेटिंग राजशाही, ठीक है, राजशाही 1230। 12:30 बजे हम राजशाही पहुंच जाएंगे। ठीक है, टाइम के फॉर्मेट में एस्टीमेट्स दिया जाता है। अभी 12:15 हो रहे हैं और हम राजशाही पहुंचने से 20 नॉटिकल माइल दूर हैं, तो राजशाही हम लोग 12:30 तक पहुंच जाएंगे। अटोगा, अगला एस्टीमेट क्या है? अटोगा 1245। फिर आता है गुवाहाटी, राइट? तो गुवाहाटी क्या है? हमारा अराइवल एयरपोर्ट है, तो वहां पे बोलेंगे ETA, एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। कि हमारा जो डेस्टिनेशन एरोड्रोम है वहां पे हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है? ETA गुवाहाटी, ठीक है, ETA गुवाहाटी 1300। Akasa Air 69er62। दिस इज आवर पोजीशन रिपोर्ट। हमने पहले 5 पैरामीटर रिपोर्ट किए, लेवल, रूट, रेडियल, डिस्टेंस एंड टाइम, ऑल 5 पैरामीटर रिपोर्टेड। फिर बचा एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेटिंग किसको? अगला स्टेशन, अगला वे पॉइंट कौन सा आ रहा है? राजशाही 12:30 बजे, अटोगा 12:45, गुवाहाटी 1 बजे, अकाशा एयर 69er62। अब आप पूछोगे सर ये सब टाइम आपने कहां से लिया? अपने मन से।
टोटल हाइपोथेटिकल, नो बाउंडेशन, किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं। आप चाहो तो राजशाही को 1 बजा दो और गुवाहाटी को 15 बजा दो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, अपने मन से। ठीक है, टाइम कैलकुलेशन टोटल हाइपोथेटिकल, नो बाउंडेशन, बट इट शुड लुक रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि एक जगह 100 नॉटिकल माइल हम लोग 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, दूसरे जगह 100 नॉटिकल माइल 15 मिनट में कवर कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा रियलिस्टिक लगे बट टोटल हाइपोथेटिकल, अपने मन से। समझ में आ रहा है सबको? तो एक क्वेश्चन पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसका आंसर मैं ही दूंगा, आपको बस समझना है हाउ दैट कॉल इज बीइंग गिवन और हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फॉर्म्ड। बाकी पोजीशन रिपोर्ट के कॉल्स हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, डीपली। नाउ क्वेश्चंस में बी गिवन एज यू आर, ठीक है, यू आर ओवर राजशाही, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, या फिर लिखा रहेगा यू रीच्ड राजशाही, आप राजशाही पहुंच गए। हाउ दैट कॉल कैन बी गिवन, हैव अ लुक। कॉल जाएगा कंट्रोल को, अप्रोच और टावर के रेंज से बाहर हो। कोलकाता कंट्रोल, आकाशा एयर 6962, नोट करो सब लोग, आकाशा एयर 6962 ऑन 132.45, एयरबस 320 IFR कोलकाता टू गुवाहाटी। ठीक है, करंट पोजीशन ओवर राजशाही, फ्लाइट लेवल 320 रोमियो 472 रेडियल 057, करेक्शन टाइम 1230, एस्टिमेटिंग अटोगा 1300, ETA गुवाहाटी 1320, आकाशा एयर 6962। अब आप बोलोगे, ठीक है, जस्ट हैव अ रिव्यू करता हूं कॉल को, क्या क्या बोला हमने। बोला कि करंट पोजीशन ओवर एट राजशाही, फ्लाइट लेवल 320, एक रोमियो 4722, टाइम बोल दिया 1230, एस्टिमेट कर रहे हैं अटोगा को 13 बजे और गुवाहाटी 13:20। पिछले क्वेश्चन में हमारा गुवाहाटी 13 o'clock पे था और अटोगा था 1245, बट इस कॉल में हमने चेंज कर दिया ताकि आपको ये दिख सके कि टाइम कैलकुलेशन टोटल हाइपोथेटिकल है, नो बॉदरेशन। ठीक है, कोई बाउंड नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर इस कॉल में आपने 3 ही पैरामीटर दिए, बाकी के 2 किधर गए? जब आप किसी MRP के ऊपर रहते हो, जब आप किसी स्टेशन के ऊपर रहते हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेशन में जैसे आपने मेंशन किया ओवरहेड राजशाही या ओवर राजशाही, इस केस में देखोगे आप ना तो कि कोई डिस्टेंस किसी से दूर हो और ना ही आपका कोई रेडियल है। क्यों? डिस्टेंस कहां से लेते हो? किसी MRP से। आप MRP के ही ऊपर खड़े हो तो डिस्टेंस क्या रहेगा? कुछ नहीं। रेडियल, अभी किसी रूट को आपने पकड़ा ही नहीं तो रेडियल क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो जहां पे जो एप्लीकेबल है उतना पैरामीटर आप बोल के बाकी सब स्किप कर दो। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर सो फार? समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। Okay. One more question for your reference. Answer I'll be given only. इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा घुमा फिरा के कि यू आर 20 नॉटिकल माइल टू राजशाही। ठीक है, क्वेश्चन में भी इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा डिस्टेंस यू आर, ठीक है, 20 नॉटिकल माइल टू राजशाही। अब ध्यान से देखो, रहेगा टू या फ्रॉम। अगर लिखा हुआ है टू तो टू मतलब होता है टुवर्ड्स, और लिखा हुआ है फ्रॉम तो फ्रेम का मतलब होता है अवे फ्रॉम। ठीक है, 20 नॉटिकल माइल टू राजशाही मतलब आप राजशाही पहुंचे नहीं हो, राजशाही के तरफ 20 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस अभी बाकी है। यानी ये जो ग्रीन कलर का डॉट है
टू राजशाही। अगर रहेगा फ्रॉम राजशाही मतलब राजशाही के बाद। समझ में आ रहा है सबको टू या फ्रॉम में डिफरेंस? सर ठीक है, टू मतलब टूवर्ड्स, राजशाही के तरफ, यानी इस वाले लोकेशन पे। फ्रॉम राजशाही मतलब राजशाही से अवे फ्रॉम, राजशाही के बाद, ये वाला लोकेशन। So have a look how call can go. ठीक है, you are 20 nautical mile to राजशाही, यानी घूम फिर के कहाँ आ गए, ये ब्लू वाला डॉट। हाउ दिस कॉल कैन बी गो, हैव अ लुक। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा है तो वही डिस्टेंस मेंशन करेंगे, फिर अपने मन से नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है टू मतलब इनबाउंड रिपोर्ट होगा, इस केस में हम अपने मन से आउटबाउंड रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का ही डिमांड है इनबाउंडिंग। सो हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक। वेरी सिंपल, कोलकाता कंट्रोल Akasa Air 69er62 on 132.45, Airbus 320, IFR Kolkata to Guwahati, current position, flight level 320, Romeo 472, radial 003, 20 DME, inbound Rajshahi, time now 1220। एस्टिमेटिंग राजशाही, अगला पड़ाव क्या है, राजशाही ही 1230, अटोगा 1245, ETA गुवाहाटी 1300, आकाशा एयर 69er62। समझ में आया सबको? हाँ, मैंने पैरामीटर्स गिवन, लेवल, रूट, रेडियल, डिस्टेंस, टाइम, 5 के 5। फिर क्या आया, एस्टिमेट्स, तो EST शॉर्ट फॉर्म ऑफ एस्टिमेटिंग, राजशाही 1230, अटोगा 1245। देखो, अब हमने जो यहाँ पे सबके एस्टिमेट्स लिखे तो सबका VOR कोड चेपा, GGT गुवाहाटी, RAJ राजशाही। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लेकिन कौन इतना टेंशन लेगा, क्यों इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर बनाए और उसमें टाइम वेस्ट करे। सीधा RAJ राजशाही, अटोगा, GGT गुवाहाटी। क्लियर, समझ में आया सबको? यस, नो, एनीथिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, एक फाइनल कॉल फिर क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा यू आर पासिंग 7000 फीट, ऐसा करके लिखा रहेगा, यू आर पासिंग 7000 फीट, यानी उसने आपको अल्टीट्यूड के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन कर दिया। अब हमारा अल्टीट्यूड फ्लाइट प्लान वाला अल्टीट्यूड नहीं रहेगा। So how this can call go? Have a look. You are passing 7000 feet at 20 nautical mile from कोलकाता। अब देखो, यहाँ पचड़ा फंस गया। क्या बता दिया उसने कि कोलकाता से 20 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे 7000 फीट क्लाइंब कर रहे हो। हैव अ लुक, 20 नॉटिकल माइल का एरिया और कोलकाता, अप्रोच को कॉल जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर का रेंज है 5000 फीट। सो दिस कॉल विल गो टू अप्रोच। हैव अ लुक, कोलकाता अप्रोच Akasa Air 69er62 on 132.45, Airbus 320, IFR Kolkata to Guwahati. Current position, passing 7000 feet for flight level 320, 20 DME outbound Kolkata, Romeo 472, radial 003, time now 1210, estimating Rajshahi
1230, अटोगा 1245, ETA क्या था, गुवाहाटी, ETA गुवाहाटी 1300, Akasa Air 6962. Understood? Got the answer? हमने कहा क्वेश्चन में लिखा है 7000 फीट पास कर रहे हो तो पासिंग 7000 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 320. डिस्टेंस लिखा है इसने 2 नॉटिकल माइल तो 20 DME आउटबाउंड कोलकाता, कोलकाता से 20 नॉटिकल माइल दूर. रोमियो 472 यहाँ लिखा है ना फ्रॉम, फ्रॉम मतलब अवे फ्रॉम मींस आउटबाउंड, आउटबाउंड कोलकाता. रोमियो 472 रेडियल 003 टाइम 1210, 5 पैरामीटर हो गए. एस्टिमेटिंग 12:30 राजशाही, अटोगा 12:45 और गुवाहाटी 1 बजे. डन. So this is the way of reporting your positions. Am I clear so far? Yes, sir. And if you want to practice more question on position report, as usual, go to the note, page number 17 onwards. ठीक है? Not onwards, page number 17. आपको position report के लिए. ठीक है? So this was the position report and this will be used widely. वाइडली, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसका. तो कल हम लोग जो कुछ कंडीशन देखेंगे, पोजीशन रिपोर्ट्स के कॉल देखेंगे एंड वी विल मिक्स पोजीशन रिपोर्ट्स along with पेन और मेटे सिचुएशन. So let's rest is left for tomorrow. Sierra Romeo Juliet, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप पढ़ा दोगे, फिर हमारा क्या होगा, 5 दिन का जो ब्रेक ले रहा हूँ. डोंट वरी, आपको भी पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ. ठीक है? आई नो कि पोजीशन रिपोर्ट्स के बाद से आपको पढ़ना है, तो आप पहले मॉड्यूल दे लो, एग्जाम में टाइम रहेगा तो सारे क्वेश्चन आंसर सारे टॉपिक्स फिर से पढ़ा दूंगा. नेवर बी वरीड. बट फॉर नाउ अल्फा जूलियट डेल्टा एंड विक्टर किलो यूनिफॉर्म, these two guide will go with full speed. आप दोनों को फुल स्पीड में जाना है, क्योंकि अभी के बाद से अगर मैं ब्रेक दूंगा ना, आप ही का लॉस है. आज जो पढ़ाऊंगा कल भूल जाओगे, कल जो पढ़ाऊंगा परसों भूल जाओगे. ट्रस्ट मी. तो आप लोगों को अब प्रिपेयर्ड रहना है, आप लोग फुल स्पीड पे चलोगे. डन? Yes. Yes, sir. So be available tomorrow same 9 o'clock. We'll move ahead with further topics along with the practicing position report and some previous calls. ठीक है? चलो, that's all for today. Have a good night. Good night. Okay, sir. Thank you. Bye-bye. Night.